So now we continue. After having finished section A and section B, we will now continue to section C. Okay, section C में 3 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, तो मैं देखता हूँ जो जरूरी है सॉल्व करना या डिस्कस करना वही करूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 22 का नंबर बी जो है वो क्या बोल रहा है, हाउ इज डीप वेलोसिटी अफेक्टेड व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल कीपिंग द वोल्टेज अक्रॉस द अप्लाइड कंडक्टर कांस्टेंट, इट विल बी हाफ्ड। ओके, डीप वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कैसे समझ में आएगा, 22 का बी है ये, 22 का बी। हमको मालूम है ना Vd is equal to E by m into the relaxation time। E by m, E को इलेक्ट्रिक को V by L लिख सकते हैं, potential difference by the length of the conductor by tau। ओके, नाउ अब E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, m इलेक्ट्रॉन का मास है, tau रिलेशन टाइम, ये सारा कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, ये L के ऊपर डिपेंड करेगा 1 by L, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर लेंथ को डबल करेंगे डीप वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या है, Vd dash by Vd, V is equal to 1 by L dash by 1 by L, okay, implies Vd dash by Vd, ठीक है, is equal to कितना था ये, L dash था twice L, अगर इसको twice L कर देंगे तो क्या होगा 1 by L, implies Vd dash is equal to Vd by 2, so it is halved। Okay, next question number 23 is a very good question, be very careful with the angle theta given। ओके, ये सर्कुलर बॉल जिसका 30 टर्न्स है और रेडियस है 8 सेंटीमीटर, उसको वो 6 एम्पियर वाले करंट को कैरी करता है एंड इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। द फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ, लिसन केयरफुली, द फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the plane of the coil। The formula that we use to solve this question number 23 is this: tau is equal to NIAB sin theta। Theta is the angle made by the magnetic field and the area vector. Remember this. Theta is the angle made by the magnetic field and the area vector. Okay. Here the question is saying theta क्या है? The field lines make an angle of 30 with the plane. Say field line ऐसा करके जा रहा है, ऐसा करके जा रहा है field line. They are making 30 with the plane, not with the area vector. So that is the point. Otherwise, if you miss, your answer is wrong. Okay. Calculate the magnitude of the external torque that must be applied to prevent the coil from turning. आपको torque का value ढूंढना है. What will happen if the circular coil is replaced by a planar coil of irregular shape and the same area happens to be there? Okay, keeping other parameters unchanged. So इसमें हम क्या यूज करेंगे? N का वैल्यू है 30, I का वैल्यू कितना है? I का वैल्यू है आपका 6, ठीक है? A is the area. Area is pi r square, okay, pi into r. What was the radius? Radius was 8 centimeters, so it is 8 into 10 to the power minus 2 the whole square into b, magnetic field का value है 1 Tesla, into sine, it is not 30, it is 90 minus 30। okay, if you solve it you will get an answer। okay, it is 3.13 न्यूटन मीटर, 3.13 न्यूटन मीटर इतना है। अगर आप जो रेगुलर सरफेस है उसको चेंज करके इरेगुलर सरफेस को बदल देते हो ना, कुछ नहीं होना है, बिकॉज़ एरिया का वैल्यू सेम है, सो नथिंग हैपेंस। सो ये आंसर है 23 का है। नेक्स्ट 23 का बी का आंसर क्या होगा, क्या है, एन अल्फा पार्टिकल जिसका मास दे दिया है, चार्ज दे दिया है, एंड इसका एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट enters a region of uniform magnetic field of 0.5 Tesla। Find the radius of the circular path described by the particle। Mention the conditions under which you will have a helical path and a straight path। So ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होगा रेडियस का, R is equal to mv by qb। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होगा, R is equal to mv by qb। क्वेश्चन नंबर 23 का बी, ये और में आएगा 23 का बी, वी नो R is equal to mv by qb, ठीक है। mv का वैल्यू, mv का बना ट्वाइस ये जो है ना, k is equal to mv by ट्वाइस mk by qb, ठीक है। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ट्वाइस mk by qb। तो इसमें v का वैल्यू दिया है क्या, इसमें नहीं दिया है। सो you put the values here। so you are given k is 8 mega electron volt, mega 8 mega electron volt, so 8 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joules, that is equal to 1.28 into 10 to the power minus 1.28 into 10 to the power minus 12 joule,
तो ये क्या आ गया आपका m दे दिया। अब इफ यू पुट ऑल दिस वैल्यूज यू विल गेट दिस आंसर 0.8 मीटर। ठीक है, मैं सोल्व नहीं करने वाला ये सब। अब कंडीशन क्या है हेलिकल पाथ के लिए? ओके, कंडीशन ये है कि एक पार्टिकल अगर एक एंगल बना करके मैग्नीफाइड पूछता है, इट हैज टू कंपोनेंट्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एंगल जो है वो थीटा और 90 डिग्री 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, and that is what it is। and straight line के लिए the magnetic field should be parallel to velocity, f is equal to q into v cross b, magnetic field should be parallel to velocity, तब जाके आपको मिल जाएगी। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 में है बिहेवियर ऑफ एन इंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड डीसी सोर्स हाई फ्रीक्वेंसी। ये सब मैं डिस्कस नहीं करने वाला, यू नो इट। ओके, इसका आंसर है यहाँ पे। I have not neglected it. I have written the answer, but I am not going to discuss it here. Question number 25 का B क्या है? Show that 1 by root over mu naught epsilon gives velocity of an EM wave in free space. How do you solve it? You solve by the method of dimensions. Okay? आप डायमेंशन एनालिसिस की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कितना क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 25 का B। 25 का B। तो क्या है ये? तो इसके लिए हमको क्या 1 by हमको म्यू नॉट का डायमेंशन मींस एप्स मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या m l स्क्वायर m l t raised to minus 2 a raised to minus m l t raised to minus 2 a raised to minus 2। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका है m raised to minus 1 l raised to minus 3 t raised to 4 a square, m raised to minus 1 l raised to minus 3 t raised to 4 a square। you multiply them, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर दो तो आपको कितना मिलेगा? ये तो mm कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा l raised to minus 2, ये होगा t स्क्वायर, कितना हो गया? therefore 1 by root over mu naught epsilon naught is equal to 1 by root over l raised to minus 2 t स्क्वायर, कितना हो गया? 1 by l to the minus 1 t l t to the minus 1। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? वेलोसिटी का। डन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। ये ऑप्टिक्स से आया, रे ऑप्टिक्स से। ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लिप जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ये इंसिडेंट होता है एक ग्लास एयर इंटरफेस में एट क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया। The slab is then brought in contact with water, जिसका refracting index 4/3, and such a thin horizontal layer is formed on the surface of the slab. Find the angle at which the ray will emerge into the water air interface। आपको ये एंगल ढूंढना है। एक्चुअली ये बहुत आसान है, इसको मतलब स्टेटमेंट देके कॉम्प्रेस कर दिया। आंसर 90 डिग्री। ठीक है, ये देखो इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पहले हम कैसे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहला ग्लास और एयर का, बिकॉज़ इट इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल, इनटू sin थीटा c, बिकॉज़ टेयर जो होता है इट हैपेंस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, नॉट फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट हैपेंस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इनटू n ऑफ एयर, n बॉडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, sin 90। तो n ऑफ हमको sin थीटा c ढूंढना है, कितना होगा? n एयर बाय n ग्लास, ये है वन ग्लास का कितना है? 3/2, दैट इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, sin थीटा c कितना आ गया? 2/3। अब इट इज ग्लास और वाटर का जो ये अगर स्लैब है, स्लैब का एक लेयर में, स्लैब के ऊपर के लेयर में एक वाटर का थिन सरफेस बना है। सो ठीक है ना, अब ग्लास और वाटर का मामला है। सो n ग्लास into that angle is equal to n water into sin theta। ओके, थीटा किसका होना चाहिए? इसे वाटर का दे सकते हैं। सो हमको sin थीटा w ढूंढना है, इट इज इक्वल टू n ग्लास बाय n वाटर into sin थीटा c। ग्लास का कितना है? 3/2, वाटर कितना है? 4/3, into sin थीटा कितना है? 2/3। सो कितना होगा? If you solve it, 3/2 into 3/4 into 2/3, so 2 gets cancelled, is 3/4। ओके, sin थीटा w कितना आया? 3/4। अब वाटर और एयर का, बिकॉज द रे ऑफ लाइट का
हाल क्या है, ग्लास से वाटर में जाता है, तो ग्लास और वाटर का ढूंढ लिया, अब वाटर से बाहर चला जाएगा, अब इमर्जेंट एंगल का बात आएगा। सो एन, देयरफॉर एन water into sin theta w is equal to n air into sin e, बोलते इमर्जेंट, ठीक है, ये हो गया। तो sin e कितना हो गया, sin e कितना होगा, n वाटर by n air into sin theta w। वाटर कितना है 4/3, एयर कितना है 1, sin थीटा 3/4, इसका आंसर आ गया 1। सो साइन ई का वैल्यू है 1, इंप्लाइज ई कितना है 90 डिग्री। इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन, गिव वन एग्जांपल। ये टेक्स्ट बुक में है, न्यूक्लियर चैप्टर में, आप देख लेना, ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, briefly explain forward biasing and the reverse bias p-n junction, that is also there. So we have ended section C, okay. This is what it is. Section C is not very difficult, as you have seen. Now we'll go to the next section, which is section number D, okay.